9A and 9B exercise are very easy and small exercise. 9C exercise is the most important one. It's the most important one because it deals with multiplication of matrix. Okay, so the most important exercise, and it is a bit lengthy also. There are around 31 questions here. Then the 9D exercise is the miscellaneous exercise. Okay, it is miscellaneous. So that is also easy. Miscellaneous is combination of 9A, B, and C. Okay. So we will focus the most on 9C exercise. 9A and B, you yourself will come to know that how easy those exercises are. Okay. So without wasting any more time, let's start. First, let me introduce you with matrices. So what is a matrix? What is a matrix? A matrix is nothing but the arrangement of numbers in the form of rows and columns. Every matrix is written in square brackets. Okay, they are written in these type of square brackets, and the numbers are arranged in rows and columns. For example, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Let's say I write the numbers like this. Okay, you understand what are rows? Rows are like this, horizontal. These are called as rows. And what are columns? Columns are vertical arrangement of numbers. Rows are horizontal arrangement of some numbers. These are called as rows. Okay, rows and columns are vertical arrangement. Okay. So here in this question, there are how many rows? Just can you tell me how many rows are there in this matrix which I have written? How many rows are there here? 3 rows are there. One, this is 1, this is 2, and this is 3. 3 rows are there. Okay, 3 rows are there. Horizontal arrangement of numbers. Then how many columns are there here? In this same matrix, how many columns are there? 3 columns. 1, 2, and 3. 3 columns are there in this. Okay, so 3 rows and 3 columns. So this matrix here, let's say this is matrix M. So this matrix here has 3 rows and has 3 columns. Okay, so we write it like this, that the order of this matrix, is 3 cross 3. 3 cross 3. It is not 3 multiplication 3. Okay, it is 3 cross 3. Means first you write the number of rows and then you write the number of columns. So that is called as the order of the matrix. Order हमें ये बताता है कि मैट्रिक्स में कितने rows and कितने columns हैं. ठीक है? So this is called as the order of the matrix. For example, I make another matrix here. Let's say I have written a few numbers. Let's say this is a matrix. So can you tell me how many rows are there here in this matrix? Two rows are there here. Two rows are there. You can see this is one row. See, one row and second row. Okay, these are the 2 rows in the matrix. Okay, and how many columns are there here? 3 columns are there. Very good. Okay, so the order of this matrix, is 2 cross 3. Okay, the order of this matrix is 2 cross 3. Okay, so you understood what are orders. Most important is the orders of the matrix. Okay, now there are certain names you need to remember. Okay, वैसे ये ज़्यादा use नहीं होता. Just for the sake of understanding, we will see what it is. सिर्फ कुछ नाम है ये, बस इनको एज ए नेम खाली याद रखो, बाकी ज़्यादा कुछ यूज नहीं होता. जैसे हाँ, सी ऑर्डर के लिए पहले रोज और बाद में कॉलम्स ही होना चाहिए. आप पहले कॉलम्स और बाद में रोज नहीं लिख सकते. दैट इज रॉन्ग. ओके, इट शुड बी रोज इनटू कॉलम्स. इट कैन नॉट बी कॉलम्स इनटू रोज. ओके, वो रूल है, इसलिए उसको फॉलो करना पड़ेगा. ठीक है. नाउ सर्टन अदर नेम्स. ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स है जिसमें ऐसे नंबर्स है 2, 5, 3. This is a matrix. Now, how many rows are there in this matrix?
Yes, how many rows are there in this matrix? रोज मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टल देखना है कितने हैं, ठीक है। तो ये एक ही नंबर है यहाँ पे देखो, बट फिर भी उसको एक रो काउंट करेंगे, ठीक है। दिस इज वन रो, दिस इज सेकेंड रो एंड दिस इज थर्ड रो, ओके। और कॉलम्स कितने हैं इसमें? कॉलम्स है एक, तीन रोज है और एक कॉलम है, ठीक है। तीन रो है और एक कॉलम है। सो इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर होगा 3 into 1, ठीक है। तो इसमें एक ही कॉलम है ना, तो इसे हम कॉलम मैट्रिक्स भी कहते हैं, क्योंकि ये कॉलम जैसा दिखता है। इट इज कॉल्ड एज अ कॉलम मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स का अगर कोई भी मैट्रिक्स में अगर एक ही कॉलम है तो इट इज कॉल्ड एज कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। सिर्फ नाम है ये, बाकी इसका कुछ यूज नहीं है ज्यादा, जस्ट कॉलम मैट्रिक्स, ओके। समझो मैं एक और टाइप का मैट्रिक्स बनाता हूँ यहाँ पे। लेट्स से आई चेंज दिस मैट्रिक्स एंड आई मेक इट लाइक दिस। अगर ये ऐसा एक मैट्रिक्स है तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स? What is the order of this matrix? Tell me the order directly. कितने रोज है इसमें? एक रो हो गया ये, ठीक है। और कॉलम्स कितने हैं? एक दो तीन, तीन कॉलम्स हो गए। सो इसका ऑर्डर क्या हुआ? 1 × 3। द ऑर्डर इज 1 × 3, मतलब एक ही रो है इसमें, तो इसको हम बोल सकते हैं दिस इज अ रो मैट्रिक्स। जिसमें एक ही रो होता है उसे कहते हैं रो मैट्रिक्स, जिसमें एक ही कॉलम होता है उसे कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। नाम याद रखो, ये सिर्फ ओनली दिस नेम्स आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू दिस मैट्रिक्स अगेन। इट इज 1 × 3, मैंने पहले ही बताया, इट इज 1 × 3। इसको 1 × 3 नहीं बोलते, ठीक है। इट इज 1 × 3। नाउ इन दिस मैट्रिक्स, दिस M मैट्रिक्स, देयर आर 3 rows and 3 columns, करेक्ट। मतलब रोज और कॉलम्स सेम है, रोज एंड कॉलम्स आर सेम, ओके। लेट्स से आई मेक वन मोर मैट्रिक्स हियर। व्हाट अबाउट दिस मैट्रिक्स? इसमें रोज और कॉलम्स कितने? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स? 2 × 2, करेक्ट। 2 × 2 मैट्रिक्स है ये, यस करेक्ट जिया मान्या दक्ष। 2 × 2, ये 3 × 3 है, मतलब रोज और कॉलम्स सेम है, रोज और कॉलम सेम है, ठीक है। 1 × 1 मैट्रिक्स भी हो सकता है। 1 × 1 मैट्रिक्स मतलब कैसा होगा? 1 × 1 मैट्रिक्स मतलब समझो एक मैट्रिक्स एक ही नंबर है, जिसमें जिसमें एक ही नंबर है, तो इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है, करेक्ट। तो इसको कहेंगे 1 × 1 मैट्रिक्स। ऐसा भी होता है, यूज ज्यादा कभी आता नहीं है क्वेश्चन इस पे, लेकिन दिस इज 1 × 1 मैट्रिक्स। तो दीज टाइप ऑफ मैट्रिक्स वेयर द नंबर ऑफ रोज is equal to the number of columns, number of rows is equal to the number of columns, these type of matrix are called as square matrix, क्योंकि वो एक स्क्वायर बनाते हैं। देखो स्क्वायर शेप में हो जाते हैं सब, दोनों साइड अगर सेम है रोज एंड कॉलम्स, तो इट बिकम्स अ स्क्वायर, सो इट इज कॉल्ड एज स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। इफ आई मेक अ मैट्रिक्स लाइक दिस, so here there are 2 rows and 3 columns, ओके। तो इसे हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि एक रेक्टेंगल के शेप का होता है। दिस इज कॉल्ड एज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ओके। सो yes Via. So instead of 2:3, if it is 3 and 2, then also it will be called a rectangular matrix. Yes, absolutely. So only 2 and 3. No, any two different numbers will make a rectangle, Okay, sir. so it will be a rectangular matrix. Okay, sir. Thank you. So मतलब जैसे कि समझो अगर ऐसा आ गया, ठीक है, यहाँ पे 3 नंबर्स है, यहाँ पे 2 नंबर्स है, ये तो सेम ही हो गया, तो थोड़ा चेंज करते हैं। समझो अगर ऐसा आ गया दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स, तो ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। सिर्फ ये नाम है, देखो इसमें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। सी शान, द हियर यू हैव टू सी, जब ये रोज और कॉलम्स डिफरेंट होते हैं, जब ये रोज और कॉलम्स जो है वो डिफरेंट होते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जब वो सेम होंगे तो वो होगा स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके। ठीक है, चलो ये तो समझ गया, अभी ये तो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं था।
अब दो चीजें इंपॉर्टेंट है जो मैं बताऊंगा, ठीक है, उस पर अच्छे से ध्यान देना। बाकी ये रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर वगैरह कुछ काम नहीं आता कभी कहीं पे भी। ओके, अब जो काम आएगा वो वाली चीज बता रहा हूँ, दैट इज सबसे पहला है नल मैट्रिक्स। नल या इसे कहते हैं जीरो मैट्रिक्स। नल या जीरो मैट्रिक्स मींस ऑल वैल्यूज आर जीरो। ऑल वैल्यूज आर जीरो, ऑर्डर कुछ भी हो, अगर सारे वैल्यूज जीरो है तो वी कैन से दैट इट इज अ नल मैट्रिक्स और अ जीरो मैट्रिक्स। ओके, ऑल वैल्यूज आर जीरो, ये याद रखना बिकॉज दिस विल बी यूजफुल इन सम्स। ओके, नल मैट्रिक्स, ठीक है। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, next is the most important, that is unit matrix. Unit matrix is also called as identity matrix. ये identity word in fact ज्यादा यूज होता है सम्स में। identity matrix, it is denoted, the name of the matrix is I, ठीक है। अब ये क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स? आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब एक ऐसे मैट्रिक्स जिसके डायगोनल्स के वैल्यू 1 है। डायगोनल्स मतलब समझो ऐसे वैल्यू, दिस इज 1 1 1, और बाकी सारे वैल्यू 0 है। ओके, सिर्फ डायगोनल्स के वैल्यू 1 है और बाकी सारे वैल्यू 0 है। दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। These type of matrix are called as identity matrix, ठीक है। एक और बात इसमें, जो डायगोनल है वो ऐसे नहीं हो सकता। मतलब देखो ये कैसे बनाया मैंने, ये ऐसा डायगोनल बनाया मैंने, ठीक है, नीचे से ऊपर। ये वाला डायगोनल नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, सिर्फ ये लेफ्ट टू राइट वाला डायगोनल ही चलेगा। ओनली दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, ये वाला नहीं चलेगा, दिस इज रॉन्ग। ओके, सो ओनली दीज टू मैट्रिक्स, दिस वन एंड दिस वन, दीज टू आर कॉल्ड एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें भी देखो इसकी दोनों वैल्यू क्या है, 1 है। ओके, सो दीज टाइप ऑफ मैट्रिक्स आर कॉल्ड एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अंडरस्टूड। यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। -1 भी नहीं चलेगा, 1 ही होना चाहिए। ओके, एंड बाकी सारे नंबर 0 ही होने चाहिए। अगर बाकी सारे नंबर में कुछ दूसरा आ गया 3 4 2 5 तो नहीं चलेगा, तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। जैसा मैंने लिखा है एग्जैक्टली वैसा ही होना चाहिए मैट्रिक्स, अदरवाइज इट वोंट वर्क। ओके, यस सौम्या। सर सर अगर रोज और कॉलम्स ज्यादा हो और लेफ्ट टू राइट ही जैसे आपने बनाया वैसा ही, मतलब मैट्रिक्स का पूरा डायगोनल हो, तो वो डायगोनल वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा ना? अगर क्या होगा तो वापस बताओ। सर अगर रोज और कॉलम ज्यादा हो, जैसे सर आपने आइडेंटिटी आई लिखा है इज इक्वल्स टू, आपने इधर 3 रोज एंड 3 कॉलम्स लिए हैं। हाँ, तो 4 अगर रो 4 कॉलम भी हो सकता है, 5 रो 5 कॉलम भी हो सकता है, वैसे आप बोल रहे हो ना? हाँ 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 हाँ, तो वो भी होता है एक्चुअली। क्या आपके बुक में मैक्सिमम 3 रोज 3 कॉलम्स के ही सम्स है, ठीक है, तो इसलिए मैंने ज्यादा बनाया नहीं। ओके सर। यस सुहानी। सर इसमें हमको ऑर्डर नहीं लिखना होता है, मतलब कितने ऑर्डर, रोज? हाँ नहीं नहीं, देखो ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है ना, इन ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है। ऑर्डर, आप ऑर्डर पूछेंगे तो लिखेंगे, ये 2x2 है, ये 3x3 है, पूछा तो लिखने का। वैसे सर अगर अगर नहीं लिखेगा तो भी मतलब मार्क्स नहीं जाएगा ना अगर इसका? पूछा है तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा ठीक है सर। यस अक्ष। सर ये यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स खाली कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स में ही आएगा ना? हाँ, ये स्क्वायर में ही आएगा, रेक्टेंगुलर में आ नहीं सकता, बिकॉज अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स समझो, अगर ऐसा मैट्रिक्स बनाया किसी ने, ये ऐसा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, तो इसमें डायगोनल ही नहीं होता है ना, डायगोनल ही नहीं बन पाएगा, तो यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं बन पाएगा, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होगा। ओके, एनी अदर डाउट? यस प्रत्युष। सर अगर सिंगल नंबर 1 दिया हो तो? नो, तो इट इज नॉट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 2 और मोर देन 2। ओके, सो आप लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स समझ गए हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार समझ में यूज होगा, ठीक है। एक छोटा सा टाइप है जो कभी यूज नहीं होता,
जैसे कि जिसे मैंने रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स बताया, वैसे ही एक समझो अगर कोई मैट्रिक्स ऐसी है जिसमें बाकी सारे वैल्यू 0 है, सिर्फ डायगोनल्स में कुछ भी नंबर्स है, ऐसे सिर्फ डायगोनल्स में नंबर्स है, बाकी सारे वैल्यू 0 है, तो इसे हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स, बस ये एक सिंपल चीज है, बाकी कुछ काम का नहीं है ये, जस्ट टाइम पास। ओके, और डायगोनल कैन बी ओनली इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, ऐसा डायगोनल नहीं चलेगा, दिस इज रॉन्ग, ऐसा डायगोनल नहीं, लेफ्ट टू राइट ही होना चाहिए डायगोनल। ओके, सो अगर रेक्टेंगुलर हो, मतलब अगर 1 0 0 0 1 0 हो, तो वो डायगोनल नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट वैल्यू 1 होनी चाहिए। जस्ट रिपीट द मैट्रिक्स, क्या बोला आपने? सर अभी जैसे अभी आपने दिखाया था ना, अक्ष ने पूछा था, तो मतलब सिर्फ अगर सिर्फ रेक्टेंगुलर हुआ और जो थर्ड भी सेकंड रो की थर्ड, सिर्फ 2 रोज है और सेकंड रो की थर्ड वैल्यू 0 है, मतलब 1 नहीं, तो वो मैट्रिक्स, आई मीन ये मैट्रिक्स नहीं होगा ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि मतलब लास्ट वैल्यू भी 1 ही होनी चाहिए, जो लास्ट वैल्यू होगी कॉलम रो की। यस यस, जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसमें सारे वैल्यूज, ये वाली डायगोनल की सारे वैल्यूज 1 ही होनी चाहिए, ओके सर। ये वाली सारे वैल्यूज 1 होनी चाहिए, ओके, नथिंग एल्स विल डू। मतलब लास्ट तक जाना है, मतलब वो जो 1 है वो मतलब जो रो है उसका लास्ट वैल्यू 1 होना चाहिए ना, तो लास्ट रो का लास्ट वैल्यू, सर अगर सपोज हम लोग सिर्फ फर्स्ट 2 रोज लेते हैं, तो वो यूनिट मैट्रिक्स क्यों नहीं हो रहा है? ये फर्स्ट ओनली दीज टू रोज, यस सर। नो, तो इट कैन नॉट बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सर मतलब लेकिन डायगोनल तो फॉर्म हो रहा है ना 1 का। नहीं हो रहा है ना डायगोनल फॉर्म, सी जैसे समझो यही यही वाला मैट्रिक्स ले लो, तो इसमें डायगोनल ही नहीं बन सकता ना, आप डायगोनल कैसे बनाओगे? डायगोनल मतलब जो यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे एंड होगा, ओके सर। तो वो बन नहीं पाएगा, वैसे टेढ़ा बन जाएगा ऐसे, ओके, थैंक यू। तो इट्स नॉट पॉसिबल। So, if there is a unit matrix and it considers 5 numbers, the both diagonals consisting of 1, so it will be considered as a unit matrix or not? हाँ हाँ, वो चाहे कितना भी बढ़ सकता है आगे, और एक और आप यहाँ पे एक और वो सब हो सकता है। ठीक है, आपको आता नहीं, Okay, sir. आपको सिर्फ मैक्सिमम 3x3 मैट्रिक्स ही आती है। Okay, okay, sir. तो अगर पूरे मैट्रिक्स में 0 रहेगा तो? क्या होगा? सर अगर पूरे मैट्रिक्स में 0 रहेगा तो वो नल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो चलो आप लोग मैट्रिक्स के बारे में बेसिक चीज समझ चुके हो। अभी एक और चीज बताता हूँ, दैट इज ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ओके, सो समझो अगर एक मैट्रिक्स ए है, लेट्स से द वैल्यूज इज 2 4 6 8, okay, I have to find the transpose of this matrix. I have to find the transpose of this matrix, so I will write a raised to t, इसको कहते हैं a ट्रांसपोज, या कभी कभी a डैश भी लिखते हैं, इसको भी a ट्रांसपोज कहते हैं। ठीक है, फ्रैंक में वो लोग a डैश यूज करते हैं ट्रांसपोज के लिए, और कंसाइज में दे यूज a raised to t। ओके, दोनों का मीनिंग सेम है, और बोर्ड्स में भी दोनों यूज कर सकते हैं, कभी a डैश भी दे सकते हैं, कभी a ट्रांसपोज भी दे सकते हैं आपको। ठीक है, सो a ट्रांसपोज, तो a ट्रांसपोज कैसे मिलता है हमें? ए ट्रांसपोज कैसे मिलता है? आपको क्या करना है, यू हैव टू मेक द रोज इनटू कॉलम्स, रोज को कॉलम्स बना देना है। मतलब यहाँ पे रोज की वैल्यू क्या है, 2 और 4 है, तो इसको कॉलम बना दो 2 और 4। ये दूसरा रो क्या है, 6 8, तो इसको दूसरा कॉलम बना दो 6 8। दिस इज द ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, आपने क्या किया, आपने रोज को कॉलम्स बना दिया। ठीक है, अगर मैं उल्टा करता, उल्टा मतलब मैं अगर कॉलम्स को रोज बनाता तो क्या होता, ट्राई करके देखते, चलो यहाँ पे समझो ये मैट्रिक्स है ए, ठीक है, और इसमें ए ट्रांसपोज करने के लिए समझो मैं अगर कॉलम्स को रोज बनाता, इसमें कॉलम क्या है, पहला 2 6 है, तो इसको रो बना देते हैं 2 6, और दूसरा कॉलम क्या है 4 8, इसको रो बना देते हैं 4 8। तो आंसर सेम आया, यस, आंसर सेम आया।
इसका मतलब ट्रांसपोज अगर आपको फाइंड करना है तो ईदर यू कैन मेक रोज इनटू कॉलम्स और यू कैन मेक कॉलम्स इनटू रोज। आप किसी भी को भी चेंज करोगे तो उसका ट्रांसपोज हो जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Transpose, if you have to find the transpose matrix, either you change the rows to columns or you change the columns to rows. Don't do both, नहीं तो क्वेश्चन आ जाएगा वापस। ठीक है, दोनों नहीं करना है, एक ही चीज करनी है, या तो रोज को कॉलम्स में करो या कॉलम्स को रोज में करो। ओके, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, Hello, sir. Can you explain me again this second columns to rows ka part? I didn't क्या वाला? understand. कॉलम्स को मैंने रोज बना दिया, 2 6 जो ऊपर नीचे लिखा था उसको साइड में लिख दिया 2 6, ये 4 8 है, इसको लिख दिया हॉरिजॉन्टली 4 8। Sir, same ही आंसर जाएगा ना? सेम ही आंसर आता है, मैंने कॉलम्स को रोज बना दिया। और इसको भी ट्रांसपोज ही बोलेंगे। ट्रांसपोज ही होता है, यस, ये भी ट्रांसपोज है, ये भी ट्रांसपोज है, बोथ मींस द सेम। आप कुछ भी कर सकते हो दोनों में से। ठीक है, यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज ट्रांसपोज मैट्रिक्स। 3 चीज अभी तक इंपॉर्टेंट पढ़ी है हमने। ठीक है, नल मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो पढ़ा वो इंपॉर्टेंट था, एंड अब जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स पढ़ा वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेस्ड ऑन दिस 3 important rules we are going to solve exercise 9A and 9B। ठीक है, अब एक चीज और है, that is called as additive inverse। ओके, तो वो जब एक्सरसाइज में आएगा ना मैं तभी बताता हूँ क्या है, बिकॉज ये ज्यादा कुछ यूजफुल नहीं है, खाली एक सम है इसके बेसिस पे। आई जस्ट टेल यू व्हाट इट इज व्हेन इट कम्स इन द एक्सरसाइज। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। कम टू एक्सरसाइज 9A। Don't forget what is null matrix, what is identity matrix, and what is transpose matrix. Okay. Additive inverse क्या है वो मैं आपको जब सम आएगा तब बताऊंगा। ठीक है, so exercise 9A, question number 2। question number 1 is true or false, वो आप बाद में कर सकते हो खुद से। we'll do question number 2। ठीक है, now बिफोर डूइंग क्वेश्चन नंबर 2 रिमेंबर वन थिंग। जैसे समझो मैंने एक मैट्रिक्स बनाई यहाँ पे, ठीक है, 2 3 4 5 इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे एक और मैट्रिक्स बनाई, ठीक है, 2 3 x y। I have said that this matrix, let's say it is A and this matrix is B. I am writing that matrix A is equal to matrix B. If matrix A is equal to matrix B, उनके corresponding values भी same होंगे। मीन्स जो इस मैट्रिक्स की फर्स्ट वैल्यू है और इस मैट्रिक्स की फर्स्ट वैल्यू है, इट विल बी सेम। द सेकंड वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स एंड द सेकंड वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स विल आल्सो बी सेम। द थर्ड वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स विल बी सिमिलर टू द सेम एज द थर्ड वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स एंड द फोर्थ वैल्यू विल बी सेम एज द फोर्थ वैल्यू। इक्वालिटी, इक्वल मैट्रिक्स है ना, तो इनके सारे वैल्यूज करस्पॉन्डिंग वैल्यूज इक्वल होंगे। ओके, ठीक है, सो ये बात समझ में आ गई है। अच्छा, एक और चीज, आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स मेकिंग मिस्टेक दैट व्हाइल राइटिंग द नंबर्स इनसाइड द मैट्रिक्स, ओके, वो यहाँ पे एक लाइन बना देते हैं, वो ऐसे रेशियो लिख देते हैं 2/5 या 3/6, ऐसे नहीं होता। ठीक है, इन मैट्रिक्स व्हेन यू आर राइटिंग द नंबर्स लाइक दिस, ठीक है, दीज नंबर्स होल्ड इंडिविजुअल वैल्यूज, इनकी खुद की अपनी अपनी वैल्यूज है, ये दोनों कनेक्टेड नहीं है किसी भी तरीके से। ठीक है, दे हैव 4 इंडिविजुअल वैल्यूज हियर। तो ये 2 अलग है, ये 5 अलग है, ये 6 अलग है और ये 3 अलग है। इनके बीच में कोई एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन नहीं है। ठीक है, सो डोंट डू दिस। ओके, Sioni, how is it useful? Useful in what sense, Sioni? I didn't get your point. Useful in what sense? Useful in life. Oh, that's a big question coming to me. How is this topic useful in life? So yes, in matrices the values can be negative also। ठीक है, नेगेटिव वैल्यूज भी होती है, फ्रैक्शन भी होता है, डेसिमल भी होता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, see matrices topic in near term will give you marks
फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स. ठीक है. सो हमारा पहला गोल है कि हम मेट्राइसिस इसीलिए पढ़ रहे हैं सो दैट आई वी गेट गुड मार्क्स इन बोर्ड्स. ठीक है. सेकेंड, दिस मेट्राइसिस इज ऑल्सो देयर इन योर हायर मैथमेटिक्स. हायर मैथमेटिक्स मतलब जो मैथमेटिक्स आप 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे, या इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आप जो पढ़ते हो, इंजीनियरिंग की मैथमेटिक्स, तो उसमें भी ये मेट्राइसिस काम आता है. ओके. और उसके बाद ये मेट्राइसिस कहाँ पे काम आएगा? सो दिस विल बी यूजफुल इन ये स्टैटिस्टिक्स में भी मेट्राइसिस काम आता है. ठीक है. बट वो बहुत आगे जाके काम आता है स्टैटिस्टिक्स में. तो बस बाकी और ज्यादा तो कुछ लाइफ में इसका कोई एप्लीकेशन नहीं है. ठीक है. मैथ्स doesn't have direct application. See, except addition, subtraction, multiplication and division, none of the topics of the maths will be directly applicable to you in your daily life. ठीक है. खाली आपको बेसिक अरिथमेटिक आना चाहिए, वही डेली लाइफ में काम आता है. बाकी फिर आप जब स्पेशलाइज करते हो किसी भी फील्ड में, तो आपको फिर स्पेशल टॉपिक मैथ्स के यूज होते हैं अलग अलग जगह पे. ओके. बट मैथ्स improves your intellectual ability, your logical thinking. ठीक है. आपकी जो क्वेश्चनिंग की एबिलिटी होती है, आपकी जो लॉजिकल थिंकिंग है, आप डिराइव करने का जो आपका कैपेसिटी है, दैट इज इम्प्रूव्ड बाय मैथ्स. इसीलिए वो लोग डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स देते हैं मैथ्स में. ठीक है. चलो ठीक है, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक. सो दिस इज माय क्वेश्चन हियर. अब यहाँ पे दे हैव टोल्ड दैट दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स. दोनों इक्वल है. तो वी नो दैट इफ द मैट्रिक्स आर इक्वल द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज विल बी सेम. इसका मतलब दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस. इसकी फर्स्ट और इसकी फर्स्ट वैल्यू सेम है, मींस x इज इक्वल्स टू 3 मिल गया. ठीक है. फिर दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू दिस. जो इसका सेकंड वैल्यू है वो इससे सेम होगा. ठीक है. दैट मींस y प्लस 2 इक्वल्स 1. सो y इक्वल्स 1 माइनस 2. सो y इक्वल्स माइनस 1. करेक्ट. y भी मिल गया मुझे. ओके. देन ये 3 और ये 3 तो सेम ही है, इसको तो हमें कुछ इक्वेट करना ही नहीं है. ओके. देन लास्ट वाला क्या है? दिस z माइनस 1 इज इक्वल टू 2, करस्पॉन्डिंग वैल्यू. ओके. सो z माइनस 1 इज इक्वल टू 2. सो z इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1. सो z इक्वल्स 3. डन. ओके. ठीक है. So you have understood this. Solve the question number 3, sub question 1. Solve it on your own. Come on. So I hope all of you are able to solve the first sub question. ठीक है. वो तो करने की जरूरत नहीं है, मैं सेकेंड वाला कर लेता हूँ फॉर यू. ठीक है. किसी को अगर डाउट है फर्स्ट सब क्वेश्चन में तो दे कैन आस्क मी. सेकंड भी कर लो जिनका फर्स्ट हो गया है.
Sir, how we'll do the second one? Sub question 2. Yes, sir. So sub question 2, all of you see the first term is equal to the first, that means a is equal to 3. First तो मिल गया, a is equal to 3. Okay. अब second क्या है? Second is that a minus b is equal to minus 1. a minus b is equal to minus 1. So a minus b equals minus 1. अब a आपको 3 मिल गया है, उसी को यहाँ पे पुट करना है. So minus b equals minus 1. Oh, sorry. So minus b equals minus 4. So b equals 4. b 4 मिल गया. फिर come to the third value. b plus c equals 2. Okay. I hope all of you have got the same values. C की वैल्यू में काफी लोगों ने मिस्टेक किया है. Just make sure C is minus 2. Okay, so you should get the same. 2 minus 4 is minus 2. Okay, so this was about equating the matrix. दो मैट्रिक्स जब इक्वल थी तो उनके वैल्यूज भी इक्वल है. That is what we understood here. Okay. Next, let's come to question number 4. Now we will learn what is addition and subtraction of matrix. So they have given me one matrix 8 and minus 3. ये 8 और minus 3 अलग अलग है. ठीक है. And the second matrix is 4 and minus 5. Okay. So my first sub question is to add both the matrix. Adding both the matrix means इसकी जो फर्स्ट वैल्यू है वो इसके फर्स्ट वैल्यू से ऐड होगा. ओके, सो इट विल बी 8 plus 4. मैट्रिक्स ही बनेगा, आंसर भी मैट्रिक्स में ही आएगा. ठीक है. और जो इसकी सेकेंड वैल्यू है वो इसकी सेकेंड वैल्यू से ऐड होगा. ओके, सो -3 plus -5. ओके, so 8 plus 4 is 12. -3 minus 5 is -8. So this is my A plus B matrix. This is my A plus B matrix. ठीक है. फिर हमें बोला है B minus A. थोड़ा स्पीड अप स्टूडेंट्स. B matrix minus A matrix. So again the first value with the first value और माइनस होगा इस बार. माइनस को नहीं भूलना है. ठीक है. तो 4 minus 8. This will be the first value. And then -5 minus -3. -5 minus -3. माइनस साइन को भूलना नहीं है बीच वाले. So -5 minus -3.
सो 4 minus 8 is -4, -5 + 3 हो जाएगा ये, ठीक है. सो आंसर विल बी -4 -2. This is your B minus A matrix. Any doubts, anyone? कुछ समझ में नहीं आया एडिशन में वगैरह? Okay. I'll remove this, erase this. ठीक है. थोड़ा स्पीड अप रखो स्टूडेंट्स, थोड़ा स्पीड अप रखो. कॉन्सेप्ट आपको समझना है, then you have to solve on your own. Okay. Next one is also same. 3 मैट्रिक्स दिया है आपको and then they are asking you to add, subtract, whatever it is. ठीक है. So try doing it. So first one they are saying B plus C. So B plus C मतलब B matrix and C matrix will get added. ठीक है. तो जो B की फर्स्ट वैल्यू है, जो B की फर्स्ट वैल्यू है और जो C की फर्स्ट वैल्यू है, they will get added. Okay. So 1 plus 6 and नीचे 4 plus -2. ठीक है. मैट्रिक्स के फॉर्म में ही आंसर आएगा. So 7 and 4 minus 2 is 2. So this is my answer for B plus C. Then A minus C. A minus C means 2, 5 and 6 minus 2. These two matrices are getting subtracted. So 2 minus 6 and 5 minus -2. So answer will be -4 and 7. A plus B minus C. You can do it together also. तीनों को एक साथ कर सकते हो आप कि 2 plus 1 minus 6. 2 plus 1 minus 6. ये आपका फर्स्ट आंसर आएगा. और नीचे 5 plus 4 minus -2. Okay. So 2 plus 1 is 3. 3 minus 6 is -3. 5 plus 4 is 9. 9 plus 2 is 11. So this will be the answer. Sub question 4, I want you to do it on your own. Do it on your own. I am giving you 2 minutes. Solve fast. Yes. What happened? Any doubts? Answers you can check behind. ठीक है. Answers पीछे check करके. Yes, Shan. सर मैंने हॉरिजॉन्टली लिखा है, मींस अभी फर्स्ट वाले में है ना. नहीं 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 चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा. अगर आपने इसको आंसर ऐसे लिखा है 7 और 2 तो ये रॉन्ग है. जैसे मैट्रिक्स को आपने ऐड किया है वैसे ही आंसर लिखना पड़ता है. ओके सर अभी A माइनस सी हमने पहले ही कर लिया था, तो फिर मतलब सेकेंड का जो आंसर है उसको ही हम B से प्लस कर सकते हैं. कहाँ आपने किया था A माइनस बी पहले? A माइनस सी
ए माइनस सी यूज ही कहाँ हो रहा है? अच्छा, थर्ड पार्ट में। हाँ सर। हाँ हाँ, वैसे तो आप कर सकते हो वैसे तो। ओके सर। यस अब्बास अली। सर अभी ये आपने 3 में ऐसा 2 मैंने कैसे किया, पहले ए और बी को प्लस किया है, फिर जो आंसर आया फिर सी को प्लस किया, तो भी चलेगा ना? यस यस, चलेगा चलेगा। Yes, I hope students you have completed the fourth sub question also. सिक्स्थ में तो आपको सिर्फ देख के बोलना है कि पॉसिबल है या नहीं है। तो पहले वाला क्वेश्चन क्या है? तो 1 3 2 4 है और इसको ऐड कर रहे हैं हम। किससे ऐड कर रहे हैं? डोंट हैव टू ऐड, यू जस्ट हैव टू से दैट वेदर इट इज पॉसिबल। अच्छा, वेरेवर पॉसिबल यू हैव टू राइट एट सिंगल मैट्रिक्स। ओके, तो आपको इसको सॉल्व भी करना है, ठीक है? यू हैव टू सॉल्व दिस। ये सोम, सो ये है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? द फर्स्ट मैट्रिक्स द ऑर्डर इज 2 क्रॉस 2 एंड द सेकेंड मैट्रिक्स द ऑर्डर इज 2 क्रॉस 2। तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। इफ द मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता है ओनली देन यू कैन ऐड द मैट्रिक्स। ओके, अगर उनका ऑर्डर सेम है तो ही आप मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हो, ठीक है? सो इन द फर्स्ट सब क्वेश्चन यू कैन ऐड द मैट्रिक्स बिकॉज द ऑर्डर इज सेम, ठीक है? ऐड एंड राइट द आंसर। check your answer behind the textbook. You must always check your answer because sometimes even if you have made a mistake you won't come to know if you keep the answer as it is. Always make a habit of checking your answer. Okay, now here in sub question 2 if I see the order of the matrix, ये पहले वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 1 और 2 रोज एंड 3 कॉलम, 2 rows and 3 columns. In this second one, the order is 2 rows and 3 columns. What I said here is कि अगर order same है, only then you can add or you can subtract the matrix. Same goes here. The order is same, only then you can add or subtract the matrix. ठीक है? तो इसको भी हम add subtract कर सकते हैं, ठीक है? Then do it and write the answer here. Two minus 0 is 2. 3 minus 2 is 1. 4 minus 3 is 1. 5 minus 6 is -1. 6 minus -1 is 7. 7 minus 0 is 7. In question 6, they have told, if possible, add or subtract the matrix. If possible, ठीक है? तो आपने पहले क्वेश्चन को देखा, the order is same, both the matrix have same order, तो you can add them. तो आपने ऐड करके उसका आंसर लिख दिया यहाँ पे, okay? In the second sub question, again you check the order. Order is same, order same है तो आपने subtract किया और आंसर लिख दिया यहाँ पे, ठीक है? Third sub question. Here the order is 2 cross 3 and 2 cross 2. Yes, Asim. सर हमें ऑर्डर लिखना है क्या? मतलब ऐसा 2
क्रॉस 3 यहाँ पे लिखना एग्जाम। पड़ेगा, हर सम में नहीं लिखना होता, बट यहाँ पे लिखने हाँ, की जरूरत है। ओके सर। अच्छा, उन्होंने क्वेश्चन में बोला है राइट इट एज सिंगल मैट्रिक्स। राइट इट एज सिंगल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? आपने इन दोनों को ऐड करके एक मैट्रिक्स लिख दिया ना, इसी को कहते हैं सिंगल मैट्रिक्स। ये सिंगल एक मैट्रिक्स बन गया ना, बस वही होता है सिंगल मैट्रिक्स। ये सुहानी, सर थर्ड वाले में हमको क्या करना पड़ेगा? थर्ड वाले में देखो ऑर्डर डिफरेंट है, हाँ सर, तो ऐड नहीं कर सकते, लिख दो नॉट पॉसिबल। ठीक है सर। ओके, चलो, I'll erase this. Question number 7. Question number 7 says, find the value of x and y. They have said 5 minus 1, 2, y minus 1, this matrix, minus 1, x minus 1, then 2 and minus 3 equals 4 minus 3, 7 and 2. Okay. We have to find the values of x and y. So simply just solve. देखो ये 5 माइनस ये 1, ठीक है, देन ये 2 और ये x माइनस 1, मतलब 2 माइनस x माइनस 1, ठीक है, देन माइनस 1 माइनस 2 एंड y माइनस 1 माइनस माइनस 3। जैसे है वैसा सबट्रैक्ट किया हमने, सिंपल सबट्रैक्शन और कुछ नहीं, सिंपल सबट्रैक्शन। ओके, अब 5 माइनस 1 है 4, minus 1 minus 2 is minus 3. Open this bracket, 2 minus x, 2 minus x, minus minus plus हो जाता है plus 1, then y minus 1 minus minus plus हो जाएगा, तो ये हो जाएगा plus 3। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, सी ये तो फर्स्ट तो 4 4 तो सेम ही है, ठीक है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस वैल्यू, सो 2 माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल 7, ठीक है, सो 2 प्लस 1 होता है 3, 3 माइनस एक्स इक्वल 7, सो माइनस एक्स इक्वल्स 7 माइनस 3, सो माइनस एक्स इक्वल्स 4, सो एक्स इक्वल्स माइनस 4। एक्स एक वेरिएबल है, अननोन वेरिएबल है, तो एक्स को मैट्रिक्स में लिखने की जरूरत नहीं है, एक्स आपका आंसर है, ठीक है। जैसे अब ये -3 और -3 सेम है, बट ये और ये इसको इक्वेट करेंगे, ये 2 है 2, सो y माइनस 1 प्लस 3 इक्वल्स 2, -1 प्लस 3 2 हो जाता है, सो y इज 2 माइनस 2, सो y इज 0। जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है, जैसी मैट्रिक्स है उसको वैसे ही रखना है, ठीक है, 2 क्रॉस 2 है तो 2 क्रॉस 2 ही रहेगा, कॉलम मैट्रिक्स है तो ऐड करके भी कॉलम मैट्रिक्स ही मिलेगा, रो मैट्रिक्स है तो ऐड करके भी रो मैट्रिक्स ही मिलेगा, डोंट चेंज दैट। Yes, Shreyash, which last part do you want? I didn't get it. So the one where we find x. X, see, आपको ये समझ में आया ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स कैसे मिली?
ओके, तो इसमें जो ये वाली वैल्यू है, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 7. सो 2x माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल 7. फिर ये जो आपका यहाँ पे 2 था और ये 1 था, तो ये हो गया 3 माइनस एक्स इक्वल 7. सो फिर इस 3 को हमने राइट हैंड साइड लाया, -3, और इसको सॉल्व करके आपको x मिल गया. इन द सेम वे y माइनस 1 प्लस 3 ये इक्वल है 2 से, तो इसको यहाँ पे लिख दिया y माइनस 3 माइनस 1 प्लस 3 इक्वल्स 2. फिर इसको सॉल्व किया तो यू गॉट y इक्वल्स 4, 0. दो सम्स तो आएंगे इस चैप्टर के बोर्ड्स में, 2 sums, which makes this chapter very important. This was the first sub question. ठीक है, second sub question भी same ही है. I think you should be able to do it on your own. Second sub question एकदम simple है. -8x, क्या आंसर मिला सेकेंड सब क्वेश्चन का? तो इसको सिंपली ऐड करो, -8 प्लस वाई x -2, ये ऐसा आ जाएगा. फिर इसको इक्वेट करो, दिस विल बी इक्वल टू -3 एंड दिस विल बी इक्वल टू 2. तो इससे आपको x और y मिल जाएगा. Those who are able to complete the sums quickly, try the next sum. Don't waste your time. ठीक है, बैठे मत रहो कि मैं नेक्स्ट सम कब दूंगा, तो आप लोग कब करोगे. नेक्स्ट सम ट्राई करो, नहीं आ रहा है तो ठीक है, थोड़ा सा कैंसिलेशन होगा और क्या है. Done. Let's do question number 8. Additive inverse, just wait for 2 minutes. Try the next sum. Till then, additive inverse I'll explain. Question number 8 में ट्रांसपोज चाहिए. ट्रांसपोज तो उन्होंने M मैट्रिक्स दिया है. ठीक है, M मैट्रिक्स इज गिवन एज 5 -3 -2 4. दिस इज द M मैट्रिक्स. And we have to find the transpose of M. ट्रांसपोज मतलब क्या होता है, रोज को कॉलम में बना देना. ठीक है, तो ये 5 -3 है तो मैं इसको लिख दूंगा 5 -3. -2 4 है तो इसको लिख दूंगा -2 4. ओके, तो देखो मैंने जो रोज था उसको कॉलम बना दिया. ये हो गया ट्रांसपोज. ठीक है, फिर क्या बोला है कि M प्लस M ट्रांसपोज. तो ठीक है, जो M मैट्रिक्स है उसको लिखो, जो M ट्रांसपोज है उसको भी लिखो, एंड दोनों को ऐड कर लो. दैट्स इट, सिंपल. और फिर M ट्रांसपोज माइनस M करने बोला है, तो पहले M ट्रांसपोज को लिखो, बाद में M को लिखना. फाइंड दिस.
Fast, fast, students, fast. Complete this sum. Hurry up. Lecture will end after a long time. There is still a lot of time left. I have to start exercise 9B also. तो कोई घाई नहीं है, आराम से बैठे रहो. चलो नेक्स्ट. Question number 9 about additive inverse. Additive inverse बहुत ही ये सिंपल है वैसे तो. जो इसका आंसर है वो तो बहुत ही सिंपल है, बट इसका मीनिंग क्या है मैं वो बता देता हूँ. ठीक है, आंसर तो इसका मतलब कुछ है ही नहीं, बहुत ही सिंपल है. देखो इसका मीनिंग क्या है. दैट राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए बी एंड सी. एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है. समझो एक मैट्रिक्स ए है, आप उस मैट्रिक्स ए में क्या ऐड करोगे कि आपको आंसर आएगा नल मैट्रिक्स. योर आंसर शुड बी अ नल मैट्रिक्स. ए मैट्रिक्स में आप कौन से मैट्रिक्स को ऐड करोगे दैट योर आंसर विल बी जीरो. नल मैट्रिक्स मतलब ऑल वैल्यूज आर जीरो. ओके, तो इसका आंसर होता है, इसका आंसर से फॉर एग्जांपल इफ आई टेक 1 2 3 4, लेट्स से दीस आर द 4 वैल्यूज. ओके, अब इसको मुझे ऐड करना है एक मैट्रिक्स से. ओके, इसको मुझे ऐड करना है एक मैट्रिक्स से और आंसर आना चाहिए 0 0 0 0. तो 1 में मैं क्या ऐड करूंगा तब 0 आंसर आएगा. -1. 2 में क्या ऐड करूंगा -2. 3 में क्या ऐड करूंगा -3 एंड 4 में क्या ऐड करूंगा -4. जब इसके ऑपोजिट वैल्यू को ऐड करूंगा तभी आंसर 0 आएगा. करेक्ट. ओके, सो इसका आंसर क्या होता है कि ए मैट्रिक्स को जब आप -a से मल्टीप्लाई प्लस करोगे -a से, तब आपको आंसर आएगा नल मैट्रिक्स. ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपका क्वेश्चन क्या है, इज 6 - 5. तो ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा. ए का एडिटिव इनवर्स होगा -a. -a मतलब इस नंबर्स की साइन को चेंज कर दो, -6 + 5. दिस इज योर आंसर.
अब ये b है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस बी, तो साइंस को चेंज कर दो, जीरो की कोई साइन नहीं होती, ठीक है, डोंट डोंट राइट माइनस जीरो। और ये c है तो हो जाएगा माइनस सी, बस वेरी सिंपल। सो आप चाहिए तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है वहीं पे इन द टेक्स्ट बुक इटसेल्फ राइट द आंसर विल बी, आप वहीं पे लिख दो एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है, सेम मैट्रिक्स विथ ऑपोजिट साइन, ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में ही लिख दो ऐसा, तो नेक्स्ट टाइम यू विल रिकलेक्ट विद दिस हिंट कि इसका आंसर क्या होगा। ओके क्वेश्चन नंबर 10, सॉल्व। Okay, I hope question number 10 is done. Sorry, question number 9 is done. Question number 10. 10 में you have x plus b. Those who have completed question number 10 also, question number 11 also, can try the solved examples once. एक दो solved examples जरा देख लो, solve कर लो for extra work. Don't waste your time. See, question number 10, x plus b equals c minus a. ठीक है, they have given you the value of a, b and c. इन तीनों की वैल्यूज दी है, तो लेट्स पुट द वैल्यूज। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। ये जो है इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, सो -1 -2, ठीक है, एंड 4 -3, you will get this answer. Okay, then what you do is, then you shift this matrix 0 2 on the right hand side. ठीक है, ये 0 2 वाले मैट्रिक्स को भी राइट हैंड साइड शिफ्ट करो, सो यू विल हैव -1 -2 होता है -3, 4 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 4 + 3 7, ये जो मैट्रिक्स आया, अब ये वाली मैट्रिक्स है वो इसमें से माइनस हो जाएगी। ठीक है, आप चाहिए तो पहले ही कर सकते थे, आप चाहिए तो इसके स्टेप के बाद ही यू कुड हैव रिटन लाइक दिस, x = c - a - b, क्योंकि आपको x फाइंड करना था। ठीक है, ये कर लेना भी सही है, पहले ही अगर आप सब्जेक्ट बना दोगे तो x को। ओके, सो x = -3 - 0 7 - 2, so -3 and 5 is my answer for x. Okay, solve it.
Next one is also same. They have written A minus X equals B plus C. Yes, Abbas Ali. Any doubt? सर हम लोग सीधा नहीं लिख सकते x का आंसर कि ये स्टेप करना ही पड़ेगा. सीधा मतलब सर अभी ये आपने स्टेप किया x प्लस ब्रैकेट 0 2 इज इक्वल्स टू ब्रैकेट -3 एंड 7 आया तो मैं सीधा नहीं लिख सकता. मेरे को पता है कैलकुलेशन क्या है. नहीं, स्टेप्स नहीं लिखोगे तो फिर स्टेप्स के मार्क्स नहीं मिलेंगे. ओके सर. यस अक्ष. Sir, in a matrix, can there be a double number? डबल Like- नंबर मतलब 2 डिजिट Number, like 10, 11 or something. 2 डिजिट नंबर ना. हाँ, yes sir. यस 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट कौन सा भी नंबर हो सकता है. Okay. ठीक है. अभी ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा है तो इसमें भी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, तो शिफ्ट कर लो. ये माइनस एक्स है ना यहाँ पे, तो माइनस एक्स को क्या करो, इस माइनस एक्स को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर लो और b और c को इधर शिफ्ट कर लो. माइनस बी माइनस सी हो जाएगा और ये माइनस एक्स यहाँ पे आके x बन जाएगा. क्यों मैंने x को राइट हैंड साइड शिफ्ट किया, क्योंकि x के साथ माइनस साइन थी, उसको प्लस करना जरूरी है ना, बिकॉज आई हैव टू फाइंड x. इसलिए मैंने b और c को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लिया. ठीक है, तो इट बिकम्स माइनस बी एंड माइनस सी. ठीक है, नाउ यू पुट द वैल्यूज ऑफ a b and c and you can easily solve the sum. Okay. Those who have completed, do the question number 11 also. Question number 11 में do the second one first. First or third will be homework for you. Done. Question number 11, sub question 2. Fast. Okay, done. Question number 11 done. All of you, question number 11 sub question 2, so that I can start with the B exercise now. Okay. See, now in the 9B exercise, there is nothing new. There is nothing new in the 9B exercise. सिर्फ एक सिंपल चीज आ जाती है, वो है कि नंबर को, किसी वैल्यू को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स से. मतलब लेट्स से इफ आई हैव अ मैट्रिक्स 5 - 2. ठीक है, और यहाँ पे हमने 3 मल्टीप्लाई किया इस मैट्रिक्स से. क्या मल्टीप्लाई किया है? 3. ओके, सो ये जो 3 होता है, ये इस मैट्रिक्स के हर एक वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है. जो अगर बाहर एक नंबर है तो इट गेट्स मल्टीप्लाइड विथ ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स. मतलब ये 3 5 से भी मल्टीप्लाई होगा और ये 3 - 2 से भी मल्टीप्लाई होगा. सो दिस मैट्रिक्स विल बिकम 15 - 6.
That's it. अब यहाँ पे 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, 4 values. So this 7 will multiply with each of the 4 values. Okay, so -7, 14, 7 zeros are 0, 7 ones are 7. So this will be your answer. Any doubts here? क्या डाउट होगा अभी इसमें? बस यही है इस एक्सरसाइज में. Everything else is the same. Third one is easy. Multiply 6 with both the numbers. Acha, there is one thing I would like to tell here. See, when you are multiplying a number here, when you are multiplying the number inside the matrix, don't multiply the sign with the number. मतलब ये जब 2 को आप मल्टीप्लाई करोगे -8 से, तो -2 इंटू -8 मत करना. इससे क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा. अगर आपने -2 के साथ -8 को मल्टीप्लाई कर, तो आपको नेक्स्ट स्टेप पे प्लस लिखना पड़ेगा. मतलब वो एक कंफ्यूजिंग चीज होती है. तो आप हमेशा याद रखो दैट whenever you are multiplying the number with a matrix, तो अगर यहाँ बीच में साइन है माइनस, तो इस माइनस साइन को टच मत करो. सिर्फ इस नंबर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो. तो माइनस साइन एज इट इज, 2 इंटू -8 -16, 2 इंटू 1 is 2. And then you solve further. 18 minus 16 and -12 -2. So this will be your answer. Question number 2. We'll solve till question number 4 today. Okay, so if you are able to solve it, do it on your own, and after question number 4, you can leave the meeting. Okay, others can solve with me. Those who are able to solve fast can complete it. I was planning to complete the exercise today, but it's late. Actually, the lecture started late. Next time, we'll definitely complete the exercise as well as start with the C exercise. Any doubts? See, I'm solving the sum. If you have any doubts in any step, you can ask me, okay? Do not hesitate to ask your doubts. This is the place to learn, so do not hesitate. Always ask your doubts, clear your concepts. Now we are adding the two matrix. Now once this left hand side is solved, now this matrix and this matrix are equal to each other. Equal means जो इसका फर्स्ट वैल्यू है और जो इसका फर्स्ट वैल्यू है वो सेम होगा.
That means 12 plus 2y equals 10. So 2y equals 10 minus 12. So 2y equals minus 2. So y equals minus 1. Then 3x minus 6 equals 0. Question number 2 is done. In the same way, you can solve question number 3 also. Same way, students solve question number 3 also. Yes, let me ask someone. Yes, you can multiply the sign, but फिर आपको वो sign को change करना पड़ेगा. जैसे अगर आपने minus sign multiply कर ली, तो next step में plus लिखना. तो फिर उससे mistake नहीं होगी. Yes, Arya, which sum are you on? So I'm doing the second part of question number 2. Question number? 2. Yes, Harsh. Yes, sir. Which sum are you on? Third, 9B third. 9B third. Okay. Any doubts? No, sir. Yes, Aksh. तो है ना, मेरे को शायद से डाउट है 2 का सेकंड वाला आंसर है ना, मेरा y का आंसर पॉइंट में आ रहा है. Y का आंसर पॉइंट में आ रहा है. हाँ सर 2.5. मेरा 2.5 में आया आंसर. ठीक है ना, अगर पीछे चेक कर लो, राइट है तो राइट है. अच्छा ओके सर, मतलब पॉइंट में आ सकता है ना लेकिन आ आंसर. सकते हैं. मैंने कहा ना, मेट्राइसिस की वैल्यूज 2 डिजिट, 4 डिजिट, पॉइंट, फ्रैक्शन कुछ भी हो सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. अच्छा थैंक यू. परीक्षा शान करेक्ट, श्लोक करेक्ट. सर मुझे 2.25 आ रहा है, मेरे को 2.5 नहीं आ रहा है. तो एक बार वापस कैलकुलेशन करो. ओके. Ray Siddhi, which sum are you on? So I am on the third sum right now. Third one. हेलो सर. हेलो Yes. सर. फोर्थ का मेरे को डिवीजन में आ रहा है, तो क्या करना है उसमें? मैं बताता हूँ. क्योंकि सर आई विल टेल यू द आंसर व्हाट आई एम गेटिंग. मैं बताता हूँ. सीरियस. Yes sir. Nothing. I'm telling the answer. Just take a look.
So in the fourth sum, you will find first you will shift the matrix on the left hand side. So it's -6, 0, You will shift this matrix here, so it will get subtracted. minus. I got the answer. -6, 0. -6, 0, -3 and -3. Okay. Now what to do? Now this 3 will get divided here. इसको कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं a equals 1/3 into -6, -3, 0 and -3. ये जो 3 है ये डिवाइड होने का मतलब मल्टीप्लाई होने के बाद हम ऐसे लिखते हैं कि मल्टीप्लाई हो रहा है नंबर इसके साथ, ठीक है. डिवाइड होते वक्त हम 1/, लिखते हैं 1/, में लिखते हैं उस नंबर को. सो 1/3. तो इसका मतलब सिंपली इट मीन्स that this 3 will get divided with each of these numbers. Okay, तो हर एक इस नंबर के साथ 3 डिवाइड होगा. So इसके साथ भी 3 डिवाइड, इसके साथ भी 3 डिवाइड हुआ, इसके साथ भी 3 डिवाइड होगा. समझ रहे हैं? So each and every number here is getting divided by 3. So your answer will be -2, 0/3 is 0 only, -3/3 is -1, and again -3/3 is -1. So this will be your answer. Sir, can we solve the second one, second sum, sub question 7, second? Sub question 7. Second. सब क्वेश्चन सेकेंड. क्या हुआ उसमें, क्या रॉन्ग आ रहा है? एक्स या वाई? सर मुझे वो 2.5 नहीं आ रहा है. तो क्या आ रहा है फिर आपको? मेरे को कोई अलग ही नंबर आ रहा है. क्या आपको ये स्टेप राइट आया है? देखो यहाँ पे ये स्टेप राइट है आपका. एक सेकंड. हाँ सर. यहाँ तक राइट है. हाँ सर. तो फिर आपको x अलग कैसे आ सकता है? नाउ सी दिस वैल्यू इज इक्वल टू 7, -x plus 8 is equal to 7. So -x equals 7 minus 8, -x equals -1. So x equals 1. ओके सर. ओके, फिर इसको भी इक्वेट कर लो. दिस इज इक्वल टू -8. हाँ ठीक है सर. यस रेयान. Sir, all the sums are done. I can leave. Yes, Rayan. Goodbye. Thank you, sir. Yeah. Yes. Shan, yes, once you are done the sums, you can leave. Okay. Bye to all of you. That's it for today.